کرو گے حسد کسی سے؟ چلو گے کسی ان کی دکان اچھی چل رہی ہے، پڑوسی اپنے بچوں کو گالیاں بکریا ایسے کوئی نیبو کاٹ کے ڈال لیا، کوئی مرچیں کاٹ کے ڈال لیا. اللہ دین کا سپاہی بنائے. آمین. ٹائم دیکھ لوں 1 منٹ. اچھا دیکھ لوں، پھر بھی دیکھ لوں، بولوں گا 3:45. وعدہ کرو مجھ سے نماز پڑھو گے؟ اگر نماز پڑھو گے نا تو دل یہ سینہ تو سینہ تمہارے لیے دل بھی بچھا دوں گا انشاءاللہ. لیکن وعدہ کر لو پکا سچا. یہ اس کو سیریس لے لینا. کسی کی بھی کامیابی حضرت اٹھا کے دیکھو، بغیر اس کے نہیں، بغیر اس کے نہیں. اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا، آج کے بعد ہم کسی سے جلن حسد کی نہ بغاوت نہیں رکھیں گے. کھلے دل سے ملیں گے، جدھر کو چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کرا کرو گے، گالیاں بکو گے. حضرت میری بہنیں آئی ہیں، 2-4 باتیں ان کی جھولی میں بھی ڈال دوں. بعض آدمی نا زبان کا کیا بولوں زبان کا برا ہے، زبان کا بدتمیز ہے. گالی تو نہیں ہو، گالی ہو گئی، معاف کر دی. زبان کا خراب ہے، اتنا خراب وہ بی حضرت جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی، بھائی کو چھوڑ کے آئی، بہن کو، سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے تمہارے ساتھ رہی، اور یہ اسے شراب پی کر کے گالی بکتا ہے، مارتا ہے، توڑتا ہے. میرے نبی نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے اور اچھے کام بھی کریں گے، مگر ان کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ ہوگا بولو؟ وہ لوگ جو اپنی بیوی کو عیب لگاتے، مارتے، شک کرتے، وہ لوگ جو اپنی بیوی کو ظلم کرتے، تماچا مارتے، طلاق کی دھمکی دیتے، اس پہ ظلم کرتے. اب ذرا سنو، نبی فرماتے اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. اور ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد، اور بھی بہت سارے، تم خود سمجھ لو. سمجھ رہے میری بات؟ بعض لڑکی حضرت اتنی تکلیف میں ہے، بیچاری پٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، رہ رہی ہے. کیوں؟ اس کو باہر نکال کے کھڑا کر دیتا. کیوں رہ رہی ہے معلوم ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے اس کی 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں. 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں. اگر وہ چلی گئی اس کا باپ تو پال لے گا، مگر اس کی شادی میں اتنا قرضہ ہو گیا، باپ اتارتے پریشان ہے. باپ کہے گا تو کچھ نہیں، مگر غم میں مر ضرور جائے گا. صحیح بتا رہا ہوں میں. بعض لڑکی اتنی تکلیف میں، اللہ اور رسول کے واسطے تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جائیں، یہ کمیٹی والوں نے کتنی محنت سے جل سکے سارے سامنے لوگ، یار میں تمہارا بھائی ہوں، مان لو گے نا تو دل سے دعائیں نکلے گی. کسی بھی بہن کو ستانا، تکلیف مت دینا. اور میں اپنی بہن سے بھی کہوں گا، تو اپنے دامن کے داغ لگنے مت دینا. اپنے شوہر کو نا تو بن کے دکھا دے کہ میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی. تو ایسا کام کرے ہی مت جس سے تیرا شوہر شک میں پڑ جائے، جس سے تیرا شوہر تجھ پہ شک کرنے لگے. تم تو 2 جسم ایک جان بن گئے. ایک عورت وہ ہے جو نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ عورت کون ہے؟ میری بہنوں سن لو، میری بچیوں سن لو، وہ عورت کون ہے جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اپنے شوہر سے لڑتی ہے، اپنے شوہر کو ٹارچر کرتی ہے، 5,000 کمائی ہے، 10,000 کا خرچہ بتا دیتی ہے، اس کے شوہر کو اپنے
फरमाते ऐसी औरत नमाज पढ़े तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। मेरे नबी ने शादी की ना, वो भी 11 शादी की है, अपने नफ्स के लिए नहीं, ख्वाहिश के लिए नहीं। नबी ने जो शादी की ना इसलिए शादी की थी ताकि शादी करने के बाद मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। देखो नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी, इसलिए शादी की। मैंने बहुत सारी बातों का एक में खुलासा किया। मेरे नबी की एक बीवी जिनका नाम हजरत हफ्सा, एक मास्टर साहब थे ना, वो उन्हें पता चला कि ये सैयद साहब है ना, तो वो आगे बोले हुजूर बहुत परेशान, कोई ना कोई तावीज ऐसा दे दो। सुबह लड़ाई होती है, खाने में किचकिच, दोपहर को किचकिच, शाम को किचकिच, टाइल्स लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, एसी भी है, फैन भी है, सब कुछ है, मगर लड़ाई नहीं बुझती। हुजूर कोई ऐसा तावीज दे दो। मैंने कहा देखो भाई तावीज तो नहीं दूंगा, मगर नबी की 2-4 बातें जरूर बताए देता, अमल कर लियो उस पर। बोले ठीक है। मैंने कहा तुम्हारी बीवी और तुम शाम को जब रहो तो साथ में खाना के लिए साथ में बिठाना, और एक मर्तबा अपने हाथ से बीवी के मुंह में लुकमा दे दियो। अच्छा यार तुम करके तो देखो, मुझे पूरी उम्मीद है नबी के इस प्रैक्टिकल पे फेल नहीं हो सकते। करो यार जो होगा, उसके बाद तुम्हें तावीज दूंगा। चाह नमाज का भी अहद करा लिया मैंने। हाँ सदर साहब कह रहे मैक पे, ताकि पीछे वालों को भी आवाज आ जाए। फिर सदरी की बात क्या भाई, तो आवाज आ रही पीछे वालों? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन्होंने कहा चलो डरते 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 1-2 दिन ऐसे ही डालते हैं, चलो खाना खाओ। शौहर ने ना डरते डरते लुकमा दिया बीवी के मुंह में, मुझे मुंह बनाना नहीं आ रहा, अब बनाऊंगा नहीं ना, ये खास लेंगे ये चैनल वाले सब चैनल वाले, इनसे तो बच के ही रहिए, कुछ भी डाल देंगे समझो, वरना जहां हाथ आ गया खैरियत नहीं है तुम्हारी। तो अब वो मुंह टेढ़ा करके ऐसे ऐसे चलाते और लाल आंखें, खैर कोई बात नहीं, खा लिया। दूसरे दिन फिर मीठी मीठी बातें करके फिर लुकमा दे दिया। दूसरे दिन फिर खाया उन्होंने, मैडम ने फिर खाया, मगर गुस्सा कम हो गया। अब फिर तीसरे दिन बोले यार अमल काम कर रहे हैं, अमल काम कर, फिर नमाज को पहले ही पहुंच जाए, अमल काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ के। फिर तीसरे दिन उन्होंने जैसे ही बढ़ाया उसने हाथ पकड़ लिया। तुम डरेगा कि शायद हम छूता फिरेगा, उसने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद वो लुकमा छीना और अपने मुंह में रखा और दूसरा तोड़ा और लगाया सब्जी में। मुझे खिलाते रहो, तुम नहीं खाओगे क्या? अपने हाथ से खिला दिया, उनमें रजामंदी हो गई। यार सीखो तो कुछ। इतना मोटा तावीज ये कहेगा कि ये तकिए में रखी है, और ये चारपाई के पाए से बांध दी है, ये चौखट और पता नहीं कहां से लाएगा। नहीं नींबू में फिर सुइयां चुभोएगा, बोले ये दरवाजे में अटका दिए, पता नहीं। और तुम कह रहे इतना ही बड़ा वाला अमल हो रहा है। मेरे नबी ने जो शादी की, अगर इजाजत हो तो एक बार तो रख दूं, सुनना चाह रहे बोलो। मेरे नबी की एक बीवी, उनका नाम हजरत हफ्सा, क्या नाम है? हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अपनी बेटियों के नाम यही रखा करो, समझ रहे? ये नहीं कि आयरा, कशिश, वो जो पाकिस्तान से सीरियल चल रहा है ना, वही नाम चल रहा है। अब जरा सुनो, मेरे नबी सुबह सुबह घर में गए हजरत हफ्सा के घर में। नबी घुसे, बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने अपनी बीवी को घर में घुसते ही सलाम किया। तुमने सलाम किया कभी बीवी को? बार बार तो ये समझता ना, ये तो पाँव की जूती है, जितना मार दो उतना ही कम है। अब करोगे सुबह को जाके सलाम, औरतें सोच रही होंगी ये मौलना बढ़िया है। ये काम तुम्हें देके जा रहे हो,
सलाम करने में बेइज्जत नहीं होगा। मुझे मेरे नबी ने क्या, हजरत अली करते थे, अबू बकर सिद्दीक करते थे। अरे दुआ है ये दुआ। हजरत हफ्सा ने देखा, खड़ी हो गई, इस्तिकबाल में कहने लगी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुराने लगी। अच्छा तशरीफ रखे, तफद्दल बिजुलूस। ये मेरा अरबी का जुमला, हदीस नहीं। बैठिए। गई, प्याले में पानी लाई, अल्लाह बरकत देता है। गई, प्याले में पानी लाई, ऐसे पेश करो जैसे फूल पेश करते मुस्कुराते हुए। बहनों को तरीका बता रहे हो। और बाज लोग कम नहीं है, ये भी कम नहीं, बेचारा ये कमाते कमाते भुतना बन गया, गैरेज में काला पीला हो गया। शाम को आया थका मांदा, तो इसने क्या करा, निकाला सैंडल, निकाला जूता, और बच्चों पे बच्चे पे एक इधर को भाग रहा है, किसी की नाक निकली पड़ी है, किसी का मेकअप फटा पड़ा, समझे। अब बच्चों को मारने लग गए। शौर यार क्यों मार रही हो? तो बोली चुप के रहना, ये तुम्हारा ही कारनामा। अब तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी ना, बुढ़िया, उसने सर पे चढ़ाया, बोला देख अम्मा को मत कहिए, अगर अम्मा को कह दिया ना तुझे निकाल घर से बाहर खड़ा करूंगा। इसने दुपट्टा तो पहले नहीं ओढ़ती थी, ऐसी वजह से मेरे गले में पड़ा, फेंका। बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी तलाक दे के दे। और हजरत सदर साहब ये भी इत्तेफाक से एक ही अब्बा का था। इसने भी जब तलाक़ें देना शुरू करी, तलाक जितनी मुंह में सांस चली तलाक़ें दे रहा। अब सांस रुकी, वो उधर रो रही है, इधर। 1 घंटे के बाद गुस्सा उतरा। अब ये बीवी से बोला, पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मैं उल्हांगे में आ गया हूं, पता नहीं मेरा दिमाग खराब है, पता नहीं मुझे नशा भी करने लगूं, पता नहीं क्या हो गया, मैं पागल सा हो गया, मेरी तबीयत खराब। मैंने तुमको तलाक दी है 1 आध मरतबा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें 1 आध मरतबा तलाक। बीबी बोली हाँ तुमने 1 ही मरतबा कहा था, छोटी गई की 1 मरतबा कहा था, जब तक सांस चल रही जब तक तलाक चल रही थी। जब तक तलाक अब हुआ यूं। अब मुफ्ती साहब, अगर कोई शौहर अपनी बीबी को 1 मरतबा तलाक दे होगी, और मुफ्ता बोले नहीं होगी, जाओ। अब बच्चे कैसे हो, फेंकेंगे बाहर, टांग पकड़। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, मेरे नबी जब घर में गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हजरत हफ्सा खड़ी हो गई, मुस्कुरा के बोली वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे नबी और बीबी की जिंदगी। हजरत हफ्सा ने पानी पेश किया, नबी ने 3 सांसों में मुस्कुरा करके पानी पी लिया। हफ्सा कहने लगी आका, सोने आका, प्यारे आका, सारी दुनिया से निराले आका। तभी तो बरेली के इमाम बोले, दिल के